Hello students, I am NK Jha from APS. How are you? I think you are well. By the grace of God, I want to tell you, you have studied the tense form. Very important because you know tense is the backbone of English. And nowadays we are learning the negative sentence, but today we shall discuss about interrogative, how you will form interrogative sentence. It's very easy if once you understand the criteria and tricks how to form interrogative sentence. If you have knowledge of about tense, otherwise you can't form because you have no any idea about tense at that time. You can't form properly the interrogative one. A lot of problem will be raised in your brain. So finally I want to give you a piece of advice. Handle that topic. So interrogative sentence is very easy. Whenever the sentence begins with helping verb, is known as interrogative and sign of interrogation at last, because you have already studied the definition of interrogative sentence. But here I have to form interrogative and we have a simple sentence just like through example we shall try to understand it. Some examples I am writing. He eats a mango. Number 2, he wrote a letter. Number 3, Ram was teaching me English. और भी मोर एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, कोई बात नहीं. मैंने डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस लिखे हैं, but we have to change into interrogative form. Interrogative form में चेंज करना है. बट हम लोग जानते हैं कि यह सेंटेंस जो है सो सिंपल सेंटेंस है, बिकॉज कॉन्टेनिंग वर्ब, वन वर्ब एंड वन सब्जेक्ट. तो सिंपल सेंटेंस हमेशा वन सब्जेक्ट और वन वर्ब ही लेता है. But firstly, we have to prove the sentence is related from which part of the tense form. It's necessary. After that, we can change it into interrogatives. So, through the concept, through tricks and rules, we can tell this one present indefinite. Because subject after verb is coming, but verb is given in the fifth form, and whenever you will get subject after fifth form of the verb in the sentence, it refers to present indefinite. So present indefinite का अगर इंट्रोगेटिव आप बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है. तो मैंने नेगेटिव क्लास में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि आपके पास टेंस से बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो 12 तरह के सेंटेंस होंगे, क्योंकि
फॉर प्रेजेंट में, फॉर पास्ट में और फॉर फ्यूचर में। तो 10 सेंटेंस जो होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे और 2 जो होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेंगे। उसमें एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, और जो रेस्ट बच गए वो सारे में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे। आप टेंस वाला फॉर्म निकाल करके देखो। तो हमको यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाना सीखना है। निगेटिव हम लोग सीख लिए। तो जब हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा और पता चल जाएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, पास्ट इंडेफिनिट से है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से है, पास्ट कंटिन्यूअस से है, फ्यूचर इंडेफिनिट से है, फ्यूचर कंटिन्यूअस से है, तो आराम से हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो जब कभी भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है बिकॉज फिफ्थ फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है बिकॉज सेकेंड फॉर्म, and this one continuous form because helping verb was after, fourth form is coming. Always this one refers to past continuous. Without any hesitation you can tell because subject after was plus fourth form is coming. 100% this is past continuous. The second example is 100% past indefinite, and the first example is from present indefinite. So कैसे हम लोग इसको फॉर्म करेंगे? जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सेंटेंस में और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो आप इस रूल्स को अप्लाई करना और ये रूल्स के माध्यम से आपका सेंटेंस हमेशा करेक्ट निकलेगा। डू दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऑलवेज यू हैव टू यूज फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, and this is past indefinite interrogative. Did plus s plus first form plus object and sign of interrogation. Always you have to use. This is second form of the word. So this is past indefinite, but we have to form interrogative sentence of past indefinite. So always you have to apply these rules. So without these rules, you can't form past indefinite interrogatives, and without these rules, you can't form present indefinite interrogatives. It's clear? So do that plus subject plus V1 plus object for present indefinite interrogative have to use, and did plus s plus first form plus object and sign of interrogation for past indefinite have to use for making interrogatives. Clear? And third one helping verb आपको मिल रहा है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जब helping verb मिले तो आंसर विल बी, हम लोग ने डू और डज का यूज पढ़ा है। तो हमने कहा था कि आई, वी, यू, दे और मोर देन वन सब्जेक्ट को छोड़ करके दुनिया में जितना भी सब्जेक्ट बच गया सबके साथ डज लगेगा। जरा टेंस फॉर्म में आप याद करेंगे तो ये टॉपिक दिया हुआ है मैंने, तो आपको शायद कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके अकॉर्डिंग टू आंसर हमको डज लिखना पड़ेगा। डज आफ्टर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में ला दीजिए इसको, ईट अ मैंगो, एनी डाउट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ही रोट अ लेटर, डिड he, V1 write a letter, sign of interrogation. कोई डाउट? I think no any problem will be raised in front of us whenever we shall try to understand the real concept of interrogative.
नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, राम वॉज टीचिंग मी इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब तो आपके पास है। जब हेल्पिंग वर्ब आपके पास हो तो इंट्रोगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है। हेल्पिंग वर्ब को क्या करो, आप आगे ला करके पुट कर दो, यही काम करना है सिर्फ, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल देना है। मतलब पुट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट एंड एट लास्ट हैव टू पुट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, द सेंटेंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव। मतलब हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस में रहेगा उसको आप आगे पुट कर देंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज कर देंगे, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, नो डाउट। ओके, सो ये वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो लाएंगे इसको पहले। वाज राम टीचिंग मी इंग्लिश। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? और कोई भी एग्जाम्पल हो, नो प्रॉब्लम, ओनली यू हैव टू सर्च दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट and you have to search helping verb. Once again you will understand helping verb is given in the sentence, no any doubt will be raised in your brain and you can solve it easily through the tricks. Only two sentences have no helping verb, and in that condition you have to search the sentence is related from present indefinite and past indefinite, and according to the criteria of present indefinite rulers you have to use for interrogative sentence, and for past indefinite have to use did for making interrogative sentence. Okay, so this was the topic of interrogative, and before this you have studied negative sentence, and very important topic. You will have to understand in all conditions because these are the basics, and by the help of basics we can understand very nicely. Okay, so the second topic will be noun. Second topic will be noun. So at first हमको नॉन को बहुत आराम से समझना पड़ेगा, क्योंकि नॉन बहुत ही बिग चैप्टर है। नॉन बहुत ही बिग चैप्टर है। सो नॉन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट कैन प्ले मेजर रोल इन द सेंटेंस, एंड यू कैन यूज नॉन फॉर्म as a subject in a sentence or as an object in a sentence. These are the major role of nouns. So firstly we have to estimate the real definition of noun. तो noun होता क्या है? noun होता क्या है? तो हम लोग आसानी से कह देते हैं नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। नॉन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स और फीलिंग आइडियाज इज नॉन। इट्स रियली नॉन, बट आई मीन टू से नॉन कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स. Number 1, concrete, and number 2, abstract. कॉन्क्रीट नाउन कौन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होगा? साधारण सी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, कॉमन नाउन्स, ये सब जितने भी हैं सब कॉन्क्रीट में आ जाएंगे, क्योंकि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है।
आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। ये जब क्लास एक्सप्लेन करेंगे नाउन का तो उस समय हम लोग सारी बात को समझ जाएंगे। अभी हम दो बातें थोड़ा सा आपके सामने डालना चाहता हूँ, इसको थोड़ा हमें समझना है। नाउन चैप्टर है, चैप्टर नेम नाउन, डेफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ओके। बट जब फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा तो चार पार्ट वो हो जाएंगे कॉन्क्रीट, और फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो वो हो जाएंगे आपका एब्स्ट्रैक्ट। ओके, द नाउन इज ए नेमिंग वर्ड जस्ट लाइक, एंड दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, a noun can also name, a noun can also the name of an idea, or a feeling, It's clear? तो फीलिंग और आइडिया जो आएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, और रेस्ट जो भी नेम प्लेस ये सब आएंगे, पर्सन के नेम, प्लेस, थिंग के नेम, ये सब सारे कॉन्क्रीट नाउन होंगे। तो इन सब का जो है, पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का, ये सब जितने भी हैं, इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। जरा ध्यान से समझना इस बात को। जब फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका होगा वो कॉन्क्रीट नाउन हो जाएंगे। वो कौन सा नाउन हो जाएंगे? कॉन्क्रीट। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या होता है भैया? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ। अंडरस्टैंड? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ। मनुष्य को देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अंडरस्टैंड? जिस चीज़ को भी आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जिसको नहीं देख सकते वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जस्ट लाइक नाइट, नाइट को आप नहीं देख सकते, सिर्फ फीलिंग कर सकते हो कि रात है। रात को हमको दिखाई नहीं देती है, हम लोगों को नहीं दिखाई देती है। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड, ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना। हम फिजिकल एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे पूरा। नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, और फिर जो डिफिनेशन है नाउन का वो पूरी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। तो फिर हम आसानी से इसको समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो रटा रटाया बात। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अ नाउन कैन ऑल्सो द नेम ऑफ एन आइडिया और अ फीलिंग। तो ये रटा रटाया बात हो गया। ये बहुत बड़ा बात है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये बहुत बड़ा बात है। ये सारे का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ये सारे का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और सेंस ऑर्गन, साइंस आप पढ़ते हो ना, तो अपना जितना भी सेंस ऑर्गन है, सेंस 5 और 5 है ना,
उससे जो भी एक्टिविटीज होगी वो सारे कॉन्क्रीट नॉन में जाएंगे। और कैसे जाएंगे वो नॉन की क्लास जब समाप्त करेंगे और फिजिकल एग्जिस्टेंस में जब हम रहेंगे तो आपको इसको हम आराम से बताएंगे। सो फिलहाल हम लोगों को नॉन का डिफिनेशन को समझा, नॉन के बारे में कितने काइंड्स हैं इसको हम लोग अगले वीडियोज में समझेंगे। सो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू, you have to read chapter nouns at your home. After that you can better understand the topic of nouns and the mystery of nouns. Very very mysterious topic, otherwise it will confuse you and you will be always in doubt. So you have to read it, and reading after, when you will watch the video, after that you can understand the function of noun and why it is so necessary for us. तो noun की एक बात आपको समझ में आ गई। अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो फर्स्टली यू हैव टू रीड एट होम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ये सारे जो दिए हुए हैं भैया, मेरी बात को सीधा एक बात समझो अगर, तो मेरे समझ से दुनिया में एक ही नाउन पैदा हुआ था और उसका नाम था कॉमन नाउन। उसका नाम था कॉमन नाउन। इसको हम लोगों ने इतना सारा क्लासिफिकेशन करके बना दिया। अब भैया अब बहुत सारा आदमी बोलेगा कॉमन नाउन ही क्यों खाली पैदा हुआ और सब कहाँ से आ गया, आकाश से टपक गया? नहीं, इसी में से आया, कॉमन नाउन से ही। अब एक बात बताओ हमें, भगवान ने मनुष्य पैदा किए या राम श्याम मोहन पैदा किए? नहीं ना किए, मनुष्य पैदा किए। उसका नामकरण तो यहाँ किया गया भैया, इसका नाम जो है सो गुड्डू रख दे, इसका नाम मोहन रख दे, इसका नाम रानी रख दे। है कि नहीं है? तो मनुष्य को जो पैदा किया भगवान ने तो कॉमन नाउन था जी, प्रॉपर नाउन तो हमने उससे बना दिया नहीं। तो उसकी डिस्क्राइबिंग भी होगी, चर्चा होगी, बहुत ही वाइटल टॉपिक हैं। और हम लोगों को अभी नॉन ही समझना है, क्योंकि नॉन को अच्छे तरह से समझेंगे तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि नॉन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, थैंक्स।